Hello everyone, welcome to World Student Scope. So here I am your English educator and today we are going to start our class 9th syllabus and we are having two main textbook. One is our main textbook and another one is our supplementary reader. The main textbook that we are having is Beehive and the another one that is supplementary reader we are having Moments. So mainly we are having two books of class 9th and today we are going to start with the class 9th syllabus of chapter. We are going to start with chapter number 1. But before that, let's little bit know about all the chapters that we are having in this 9th class along with the poems. So first chapter of this main textbook Beehive is The Fun They Had, which is written by Isaac Asimov. Along with that there is one poem, The Road Not Taken, which is written by Robert Frost. So in the first chapter we are having one story, moreover one poem also. In the second chapter, The Sound of Music, this chapter is divided into two parts. First one, The Evelyn Glennie, Deborah Colley, written by, and next is Bismillah Khan, and along with that there is a poem Wind, which is written by Subramania Bharti. Third chapter is The Little Girl, which is written by Catherine Mansfield along with one poem that is Rain on the Roof, Courts Kinney. Fourth chapter is A Truly Beautiful Mind and this chapter is written by along with that there is one poem, The Lake Isle of Innisfree, which is written by William Butler Yeats. And fifth chapter we are having The Snake and the Mirror, written by Vaikom Muhammad Bashir. Along with that one poem, A Legend of the Northland, written by Fob Carey. Sixth chapter, My Childhood, written by APJ Abdul Kalam, and along with that there is one poem that is No Man Are Foreign, James Kirkup. Seventh chapter we are having is Packing, written by Jerome K. Jerome, and one poem, The Duck and the Kangaroo, written by Edward Lear. Eighth chapter we are having, this chapter is also divided into two chapters along with one poem also. So our name of the chapter is Reach for the Top, Santosh Yadav. Second is Maria Sharapova. Alright. Along with one poem on Killing a Tree, which is written by Keith Patel. And ninth chapter, The Bond of Love, written by Kenneth Anderson. One poem is also there, The Snake Trying, written by W.W.E. Rose. 10th chapter we are having is Kathmandu, written by Vikram Seth, and one poem, name of the poem is A Slumber Did My Spirit Seal, written by William Wordsworth. 11th chapter, If I Were You, written by Douglas James. So mainly in this main textbook Beehive we are having a total of 11 chapters and along with the poems. Some chapters are having poems and some are not having. Okay, and some chapters are also there which are divided into two parts. So we will do one by one, and in this today's session, in this today's lecture, we will do our first chapter, that is The Fun They Had. Now the fun they had. Now this story is talking about whom? They are talking about the fun of whom? कौन से फन की यहाँ पे बात हो रही है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चिल्ड्रन हैं कुछ, तो मीन्स कि ये जो स्टोरी होगी किससे रिलेटेड होगी? ऑफ कोर्स चिल्ड्रन से ही. So let's read it out. Before you read, the story shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्टोरी है ये इस तरह से सेट हुई है, it's set up like in the future when we will not have any schools like we are having today at the present time, and at that time we will not have any schools. Then how student will do the study?
then how they will study, how they will learn, how they will even discover new things. तो किस तरह से वो ये सारी चीज़ें करेंगे? Like we nowadays we are having schools, we used to go school daily. जो हमारे टीचर हैं वो हमें डेली पढ़ाते हैं. Our teacher used to teach us different subject, different teachers for different subject we are having. तो हर एक टीचर अलग सब्जेक्ट के लिए है. लेकिन if suppose if in future we are not the children we will not they will not have any school in the future, then how they will study? How is it possible for them to study? So the following diagram may give you some ideas. तो इससे हम कुछ थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि अगर फ्यूचर में स्कूल्स जो हैं वो नहीं होंगे तब पढ़ाई जो होती है वो कैसे होगी, उस टाइम पे जो पढ़ाई होगी वो कैसे होगी. सो स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के स्कूल्स हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे. फर्स्ट वन, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर से पढ़ाई होगी. जैसे जो कोविड-19 था उसमें भी हमने क्या किया, कंप्यूटर्स में ही अपने लैपटॉप्स पे, एंड्रॉइड्स पे घर बैठ के पढ़ाई करते थे. ओके, तो फ्यूचर में मीन्स कैसे होगी पढ़ाई? थ्रू कंप्यूटर्स. कंप्यूटर से पढ़ाई होगी. वर्चुअल क्लासरूम्स. वर्चुअल क्लासरूम्स कौन से होते हैं? जैसे अभी जो हमारे रियल टाइम क्लासरूम्स हैं, हम स्कूल में जाते हैं, वो वर्चुअल होंगे. वो स्कूल नहीं होगा एक्चुअली में. वो कोई जैसे घर का ही एक जैसे रूम हो गया, तो वहाँ पे ऐसे वर्चुअल क्लासरूम जो है एक सेटअप सा हो जाएगा जहाँ पे वो बैठ के पढ़ाई करेंगे. रोबोटिक टीचर. As we all are aware of this word robot. रोबोट तो हम सबको पता है क्या होते हैं. तो जब हो सकता है जो फ्यूचर में जो स्कूल्स होंगे तो उसमें रोबोटिक टीचर्स होंगे. तो रोबोटिक टीचर्स जो होंगे वो ही पढ़ाएंगे. आज तो टीचर पढ़ा रहे हैं, फ्यूचर में शायद रोबोटिक टीचर्स पढ़ाएंगे. मूविंग ई टेक्स्ट. अब मूविंग ई टेक्स्ट का क्या मतलब है? नाउ वी आर हैविंग बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. पेपर पे जो बुक्स हैं वो प्रिंट होती हैं. वर्ड्स जो होते हैं वो एक जगह पे ही रहते हैं, दे कांट मूव. बट कंप्यूटर्स में कैसे होता है, हम स्क्रॉल करते जाएंगे तो जो टेक्स्ट है, जो अपने जो वर्ड्स हैं वो मूव करते जाएंगे. तो हो सकता है उस टाइम पे हमें इस तरह से पढ़ाई करनी पड़े. उस टाइम पे जो स्टूडेंट होंगे वो कुछ इस तरह से पढ़ेंगे मूविंग ई टेक्स्ट. तो ई टेक्स्ट की हेल्प से मीन्स जो पीडीएफ होती हैं, बुक्स की जो पीडीएफ होंगी वो हमें अवेलेबल होंगी. उस तरह से जो है पढ़ाई फिर कंटिन्यू होगी. In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Now here is your work, a small activity which you all should do, and that is in pair you need to discuss 3 things. Pair में आपको 3 चीज़ें डिस्कस करनी है that you like the most about school. जो 3 चीज़ें आपको स्कूल के बारे में बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा आप उसको लाइक करते हो उन 3 चीज़ों को. एंड अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो हैव टू राइट 3 more things that you would like to change. कोई ऐसी 3 चीज़ें भी आपको लिखनी है उसके साथ जो आप चाहते हो कि चेंज होनी चाहिए आपके स्कूल के बारे में. चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो पढ़ाई कराने का तरीका है, टीचिंग लर्निंग है. तो आपने ये बताना है कि वो क्या ऐसी 3 चीज़ें हो सकती है जो आप चाहते हैं कि चेंज होनी चाहिए. सो यू नीड टू राइट देम डाउन इन योर नोटबुक. सो हैव यू एवर read words on a television or computer screen? ओके, सो कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने टेलीविज़न पे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, अपने एंड्रॉइड्स पे, टैबलेट्स पे कुछ टेक्स्ट जो हैं वो पढ़े होंगे या देखे होंगे. ऑफ कोर्स आपने देखे हैं. इन दैट पेंडेमिक वी ऑल यूज्ड टू अटेंड आवर क्लासेस ऑनलाइन. तो उसमें क्या करते थे, वी यूज्ड टू सेंड आवर होमवर्क डेली टू आवर टीचर वाया सम ऐप, थ्रू सम ऐप. कुछ ऐप्स के थ्रू हमें जो प्रोवाइड की हुई थी, चाहे वो है स्नैप वर्क हो गया, कुछ भी होगी ऐप्स जो आपके टीचर ने आपको प्रोवाइड की होगी. तो उससे हम अपना जो सारा डेली वर्क था वो हम उनसे शो उनको करवाते थे. तो शायद हो सकता है कि जो फ्यूचर का टाइम है उसमें भी कुछ ऐसा ही हो जाए. कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? नाउ कैन यू इमेजिन
nowadays books are being printed on a paper, and suppose a time when books will not printed on a paper but it will be available on computers only. वो कंप्यूटर के ऊपर ही अवेलेबल हो जाएंगे आपको सारी बुक्स, सारी पीडीएफ्स, आपको ई बुक्स जो हैं, ई टेक्स्ट जो है वो आपको प्रोवाइड होगा। सारी बुक्स आप अपने लैपटॉप्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे ही पढ़ सकते हैं। और जो कोई भी बुक है वो जो पेपर है उस पर प्रिंट नहीं होगी जैसे कि अब होती है। सो वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो आपको क्या लगता है कि क्या वो बुक, वो टाइम जो है वो बेटर है, या ये जो टाइम है ये बेटर है? वो बुक्स बेटर होंगी या फिर आज की जो बुक्स हैं जो हम पेपर से पढ़ते हैं वो ज़्यादा बेटर है? जस्ट थिंक अबाउट इट। सो नाउ लेट्स रीड अबाउट दिस स्टोरी, दिस चैप्टर। मार्शी even wrote about it that night in her diary. अब जो मार्शी है उसने क्या किया है, अपनी डायरी में कुछ लिखा है on the page headed, और उसने अपनी डायरी पे एक जो पेज है उस पर क्या हेडिंग डाली है, 17 मई 2157। मीन्स अगर हम आज की बात करें तो 2022 चल रहा है, 2157 की बात हो रही है। So she wrote, Tommy today found a real book. अब ये इतने साल बाद की जो बात हो रही है, आफ्टर द सेंचुरीज के बाद की जो है ये बात हो रही है कि 17 मई 2157 की जो उसने डेट डाली है, एक हेडिंग डाली है। she wrote, क्या लिखा है उसने, Today Tommy found a real book. It was a very old book. तो वो बोल रही है कि जो टॉमी है, Today he found a real book and it was really a very old book. बड़ी पुरानी बुक थी वो, और उसको ऐसा लगता है कि टॉमी ने आज वो जो बुक है वो फाइंड आउट करी है। ओके। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं, अब मार्जी के ग्रैंडफादर ने उनको एक बार कहा था that when he was a little boy, जब वो एक छोटे से लिटिल बॉय थे, अपनी बचपन की जो बात कर रहे हैं कि जब उसके जो ग्रैंडफादर एक छोटे से एक लिटिल बॉय थे, तब क्या हुआ था, जो उनके ग्रैंडफादर थे, जब वो छोटे से थे और जो उनके दादाजी थे, उनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने उनको बोला था कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। तो उन्होंने ये बोला था कि एक टाइम था जब सारी बुक्स जो हैं कहाँ पे प्रिंट होती थी, पेपर पे। They turned the pages which were yellow and crinkly. Crinkly क्या होते हैं, with many folds और lines, बहुत सारी folds या फिर lines जो इसमें पड़ी होती हैं, उसको हम बोल सकते हैं crinkly। तो वो कह रहे हैं कि वो जो बुक है, जब वो when they turned the pages which were yellow, जो पेजेस है वो कैसे थे, येलो थे, and they were having many folds or we can say lines, and it was awfully funny to read words that stood still। और ये बड़ा मतलब मज़ेदार होता था उनको पढ़ना while they were reading the book, जब वो बुक पढ़ रहे थे, and the words stood still, और जो words हैं वो उस तरह ही रहते हैं, they can't move। अब बुक्स है, बुक्स पे जो अगर हमने एक पेज पढ़ लिया, हम नेक्स्ट पेज पे अगर पहुंच जाते हैं तो जो प्रीवियस पेज है उसके जो वर्ड्स हैं वो चेंज नहीं होते, वो मूव नहीं करते हैं, वो एक जगह ही रहते हैं, दे कांट मूव। सो कहते हैं कि वो भी बड़ा अच्छा टाइम था जब वो बुक्स जो है वो रीड करते हैं। इट वॉज ओवरली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। तो वो उनको उस टाइम से कंपेयर कर रहे हैं कि वो एक टाइम बहुत अच्छा था when books were printed on a paper and where the words stood still instead of moving like on the computer screens, on the televisions, in the androids। उसमें क्या होते हैं, when we scroll down the words will move, तो वो same words नहीं रहते हैं, लेकिन पेज की अगर हम बात करें तो वो जो words हैं they can't move। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे नीचे नीचे तो क्या होगा, जो वर्ड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। लाइक ई टेक्स्ट अगर हम बात करें, घी सेड टॉमी। अब तो टॉमी का जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसा हो रहा है कि क्या, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट।
व्हाट अ वेस्ट। अब उसको ऐसा लग रहा है कि क्या वेस्ट था वो, कि व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। उसको ऐसा लगता है व्हेन यू आर डन विद द बुक, व्हेन यू हैव एंड व्हेन योर सेमेस्टर इज एंड अप, तो क्या करते होंगे आप, यू माइट बी थ्रो इट अवे, तो आप शायद उसको फेंक देते होंगे, आई गेस, कि जो सेमेस्टर एंड हो गया, आफ्टर दैट देयर विल बी ऑफ नो यूज, उस बुक का कोई यूज नहीं है, सो यू माइट हैव जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। A television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. Plenty होता है more than enough. I wouldn't throw it away. अब उसको ऐसा लगता है कि वो जो टाइम था जब जैसे उनकी क्लास एक ओवर हो गई, जैसे 6th क्लास खत्म हो गई उनकी, तो वो बुक्स की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, they don't need it anymore. तो वो क्या करते हैं, शायद वो उस बुक्स को फेंक देते होंगे। तो उसको क्या लगता है कि on our computer screen, on our television screen, we have had a million of books and we can't and we do not throw it away. हम उसको फेंकते नहीं हैं, हाँ, इससे हमारी वेस्टेज नहीं होती है, और हमारे पास मिलियंस ऑफ बुक्स हैं जो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी, प्लेंटी होता है मोर देन इनफ, एंड वो बोल रहे हैं कि ये अच्छा होगा इफ वी हैव अ प्लेंटी मोर। I wouldn't throw it away. Same with mine, said Margie. Margie वैसे बोल रही है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। अब वो क्या बोल रही है, जो Margie है, she was 11. जो Margie है वो 11 years old है and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. और telebooks क्या होती हैं? The book which can be read on screen. जो हम स्क्रीन पे रीड कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं telebook. So क्या बोल रहे हैं कि जो मार्जी है वो तो है 11 years old, she is just 11 years old and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. अब जो टॉमी है, टॉमी was 13, अब वो उससे 2 साल बड़ा है टॉमी, तो वो बोल रही है कि मैंने बुक्स तो पढ़ी हैं लेकिन इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी जितनी कि टॉमी के पास है या टॉमी ने देखी हैं। She said, where did you find it? Now furthermore she is adding that अब वो पूछ रही है कि तुमने इसको कहाँ पे ढूंढा, इस बुक को कहाँ पे तुम्हें मिली। तो वो क्या रिप्लाई कर रहा है, इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, तो पॉइंट कर रहा है ऐसे विदाउट, उसकी तरफ देखे बिना ही ऐसे पॉइंट कर रहा है, बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, क्योंकि वो रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए वो पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, सीधा उसको क्या बोल रहा है, इन माई हाउस, कि मैंने अपने घर में ही उसको बुक ये मिली है। इन द एटिक, एटिक क्या होता है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ विच इज यूज्ड एज अ स्टोर रूम, जिसको हम एज अ स्टोर रूम यूज करते हैं। सो वो बोल रहा है कि मुझे एटिक में मिली थी। व्हाट्स इट अबाउट, तो वो उससे ये भी पूछ रही है फर्दर ऑन कि ये जो बुक है व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट, कि ये किस चीज़ के बारे में बुक है। तो वो बोल रहा है कि दिस इज बुक इज ऑल अबाउट स्कूल, ये स्कूल के बारे में बुक है। Margie was scornful. Scornful क्या होता है, contemptuous. Contemptuous, showing you something is worthless. When we are showing that something is worthless, कोई चीज़ को हम जब worthless show कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं scornful. तो Margie जो है वो scornful ऐसे मीन्स ऐसे बोल रही कि क्या worthless ये चीज़ है कि किसी ने स्कूल के बारे में लिख दिया, स्कूल के बारे में बुक आ गई। So now she wondered, school. What's there to write about school? I hate school. अब वो बोल रही कि ऐसा क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए कि मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. Margie जो है उसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब उसको स्कूल से और भी ज़्यादा नफरत होने लग गई है। She hated even more than ever. The mechanical teacher had been giving her टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। अब जो इनकी जो मैकेनिकल टीचर है ना, मैकेनिकल टीचर मीन्स जो हम कह सकते हैं जो स्क्रीन पे उनको पढ़ाती है, नॉट अ टीचर लाइक वी आर हैविंग टुडे एट प्रेजेंट। तो बोल रहे हैं मैकेनिकल टीचर कौन सी होती है, ऑपरेटेड बाय मशीन, जो मशीन से ऑपरेट करते हैं हम, जिसको
तो बोल रहे कि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। अब जिसकी मैकेनिकल टीचर है विच इज बीइंग ऑपरेटेड बाय अ मशीन, तो बोल रहे हैं कि वो उसको क्या कर रही है, टेस्ट के बाद टेस्ट देते जा रही है मार्जी को, एंड शी इज डूइंग वर्स देन वर्स। तो क्या कर रही है, वो बहुत ज़्यादा बैड परफॉर्मेंस दे रही है मार्जी, क्योंकि जो उसकी ज्योग्राफी की टीचर है उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दी जा रही है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रही है। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for county inspector। काउंटी क्या होता है, प्रोविंस, या फिर कह सकते हैं हम स्टेट इंस्पेक्टर जो होता है, उसके पास उसको भेज देती है मार्शी को। He was a round little man with a red face। वो कैसा दिखने में कैसा है, एक राउंड लिटिल मैन है और उसका रेड फेस है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास क्या है, होल, एक बहुत बड़ा कंप्लीट बॉक्स ऑफ टूल्स है, विद डायल्स एंड विद वायर्स, डायल्स के साथ और वायर्स के साथ वो पूरा मीन्स एक कवर्ड है। एक लिटिल मैन जो है वो क्या है, काउंटी इंस्पेक्टर। He smiled at Margie and gave her an apple। अब वो क्या करता है, जब वो मार्ची को देखता है, जब वो उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज देती है उसकी मदर, what then he done, he smiled at Margie and gave her an apple। वो उसको एक एप्पल जो है वो ऑफर करता है। Then took the teacher apart। तो फिर क्या करता है, वो टीचर को उससे दूर ले जाता है। Then he took the teacher apart from Margie। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again। अब मार्जी को ऐसा लगता है, जब वो उसको उससे दूर ले जाता है तो मार्जी को ऐसा लगता है कि उसको नहीं आता, he don't know how to put it together again। उसको नहीं पता इसको कैसे जोड़ना है या फिर कैसे उसको दोबारा ठीक करना है। he is not he don't know the right way to join it again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again। लेकिन वो सब जानता था, he knew everything, and सब कुछ सही सही उसको सब कुछ पता था। तो क्या होता है, एक घंटे के बाद जस्ट आफ्टर एन आवर और सो क्या होता है, अगेन उसके पास एक टीचर जो होती है, वैसे ही एक मैकेनिकल टीचर उसके पास आ जाती है। मीन्स वो सारा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लार्ज एंड ब्लैक, एक बहुत बड़ी सी, लार्ज, मोर ओवर अगली, अगली जो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं होती, सुंदर नहीं होती, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। एक बिग स्क्रीन उसको दिखती है जहाँ पे उसके सारे लेसन्स जो होते हैं वो दिखते हैं उसको। ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। सारे लेसन्स उसको वहाँ पे स्क्रीन पे प्रेजेंट हो जाते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं वो उससे पूछे जाते हैं। That wasn't so bad। अब वो क्या बोल रहे हैं, That wasn't so bad, कि वो इतना भी बुरा नहीं है। The part Margie hated most was the slot। अब मार्ची क्या है, उसको जो सबसे बुरा पार्ट लगता है, और the thing which she hated most was क्या था, the slot where she had to put homework and test papers। वो स्लॉट जहाँ पे उसको अपने होमवर्क्स, अपने टेस्ट पेपर्स जो हैं वो इंसर्ट करने पड़ते थे, मींस की जो हैंड इन है जो करने पड़ते थे। स्लॉट क्या होता है, एक गिवन टाइम होता है, स्पेस और पोजीशन, एक गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है जिसमें हमें अपने होमवर्क हो गया, अपने टेस्ट पेपर्स हो गए, अपनी असाइनमेंट्स हो गई, वो हमने वहाँ पे ऐड करनी होती है, हैंड इन करनी होती है। Okay, she always had to write them out in a punch code। और उसको क्या करना पड़ता था, she always had to write them out। और उसको कहाँ पे लिखना पड़ता था, अपने पंच कोड पे लिखना पड़ता था, which they had made her learn when she was 6 years old। जब उसने कब किया था, कब उसको बनाया था, कब उसने वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया था, जब वो when she was just 6 years old, जब वो सिर्फ 6 साल की थी, तब का जो पंच कोड है वो यूज़ कर रही है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर है वो मार्क्स कैलकुलेट करती है विद इन नो टाइम। नो टाइम मीन्स अब वो जो मैकेनिकल टीचर है
उनको कौन सा एक एक करके चेक करने होते हैं क्वेश्चंस, तो वो एकदम से विद इन जस्ट नो टाइम वो जो मैकेनिकल टीचर है वो उनके टेस्ट जो हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं, मार्क्स जो हैं विद इन जस्ट नो टाइम क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं स्क्रीन पे। लाइक अभी अगर हम अपनी इफ़ देयर इज़ अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स और 40 स्टूडेंट्स, तो हर एक की कॉपी चेक होने में टाइम लगता है, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसे मैकेनिकल टीचर होगी सो विद इन नो टाइम दे कैन चेक ऑल द notebooks, all the homework, all the test papers. The inspector had smiled again. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. Patted means touch gently. एक gentle touch को हम बोलते हैं patted. So जो इंस्पेक्टर होता है he smiled after he was finished. जैसे वो फिनिश कर लेते हैं वो थोड़ा उसको स्माइल करता है and he patted, he gently touched Margie's head. He said to her mother, और वो उसकी मदर को क्या बोलता है काउंटी इंस्पेक्टर, It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Geared means adjusted to a particular standard or level. एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे, एक पर्टिकुलर लेवल पे जो है, जो हम इसको एडजस्ट करते हैं उसको हम गियर बोलते हैं। तो वो बोलता है कि जो गलती है वो उस लिटिल गर्ल की नहीं थी, इट वॉज नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, बट द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अप टू क्विक, टू फास्ट। जो वो ज्योग्राफी उसका सेक्टर था वो कुछ फास्ट जो है वो गियर्ड अप हो गया हुआ था, जिसकी वजह से वो कैच नहीं कर पा रही थी अपनी ज्योग्राफी सेक्टर को। Those things happen sometimes. अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसी चीज़ें समटाइम्स हो जाती हैं कि वो जितना उसका कैलिबर नहीं था उससे ज़्यादा वो फास्ट एंड फास्ट उसको टेस्ट एंड कंडक्ट करी जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत बैठ जा रही थी। सो वो क्या बोलते हैं, those things happen sometimes, कि समटाइम्स ऐसा हो जाता है। I have slowed it up to an average 10-year level. तो मैंने उसको थोड़ा स्लो डाउन कर दिया है, पहले वो बहुत गियर्ड अप हो गए थे तो अब मैंने इसको थोड़ा स्लो डाउन कर दिया टू एन एवरेज 10-year चाइल्ड, एक एवरेज 10 साल के बच्चे जितना उसको उसने सेटअप कर दिया है, स्लो डाउन कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, अब वैसे बोल रहे हैं कि जो ओवरऑल पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का, इट्स क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्जेस हैंड अगेन। और वो उसको उसकी मदर को थोड़ा सा यकीन दिला रहा है, थोड़ा बिलीव दिला रहा है कि मतलब जो उसकी परफॉर्मेंस है मार्जी की इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है उसकी। वो सिर्फ जस्ट गियर्ड हो गई थी बहुत फास्ट, इसलिए वो अच्छे से नहीं कर पा रही थी वर्क। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब मार्जी क्या है यहाँ पे, थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई है मार्जी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब उसको ऐसा लग रहा था कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसको कुछ टाइम के लिए उस टीचर को उससे दूर ले जाएंगे, बिकॉज अब वो उस चीज़ से थोड़ी सी बहुत कह सकते हैं हम थोड़ा टायर्ड हो गई थी वो ज्योग्राफी सेक्टर से, टेस्ट आफ्टर टेस्ट जो उसके कंडक्ट हो ही जा रहे थे, तो उसकी वजह से उसको लग रहा था कि वो उसको थोड़ी देर के लिए उसको यहाँ से थोड़ा मीन्स फ्री उसको थोड़ा छोड़ दिया जाए इस ज्योग्राफी से। सो शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। तो वो बोल रही कि एक बार क्या हुआ था कि उसने जो टॉमी के टीचर हैं उसको पूरा 1 महीने तक, मतलब 1 महीने के आसपास उसको उससे दूर ले गए थे। क्यों? बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि वो जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक आउट हो गया था, एकदम ब्लैंक हो गया था, वहाँ पे कुछ शो ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो नियरली अबाउट अ मंथ उसको हिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ी थी। सो शी सेड टू टॉमी, तो अब वो टॉमी को क्या कह रही है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अब उसका जो ध्यान है इट्स स्टिल ऑन द स्कूल, स्कूल के ऊपर ही है कि क्यों वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, उसको ऐसा लगता है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, एंड व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट अ स्कूल इवन। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। अब जो टॉमी है उसको बड़ी सुपीरियर आइज से उसको देख रहा है, बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि वो उसको ऐसा बोल रहा है क्योंकि ये हमारे
तरह का, हमारी काइंड ऑफ स्कूल नहीं है, अपनी सिस्टर को बोल रहे हैं। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। अब वो बोल रहे हैं कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है, जो ओल्ड काइंड ऑफ बड़ा स्कूल था जहाँ पे हम, जो कि 100 एंड 100 ईयर्स अगो एग्जिस्ट करता होता था, और ये बहुत पुराने ज़माने के स्कूल होते थे। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मीन्स इन अ सुपीरियर वे, बड़े सुपीरियर वे में इस चीज़ को वो ऐड कर रहा है कि 100 एंड 100 ईयर्स पहले ये स्कूल एग्जिस्ट करते थे। He added lawfully, pronouncing the word carefully, centuries ago. बड़ा carefully इस word को pronounce कर रहा है कि centuries ago, 100 and 100 years पहले ये जो स्कूल है exist करते हैं, and it's not our kind of school, it was a very old kind of school. Margie was hurt, अब उसको थोड़ा सा hurt हो गया. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. अब वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे किस तरह के स्कूल होते होंगे, कैसे स्कूल होते होंगे. She read the book over his shoulder for a while. She read the book. अब वो क्या कर रही है, उसने बुक रीड की है for a while, उसके अपने उसके शोल्डर पे थोड़ी सी उसने जो बुक है उसको थोड़ा रीड किया just for a while and said anyway they had a teacher. They had a teacher, it was a man. अब वो ऐसे बोल रहे हैं कि एनीवे चाहे कुछ भी है लेकिन वो एक टीचर होते हैं, एक, और जो टीचर होते हैं वो कोई मैकेनिकल टीचर नहीं होते, इट वॉज अ मैन, वो एक पर्सन होते हैं जो कि स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. कहते हो सकता है कि वो टीचर हो बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर. रेगुलर टीचर यहाँ पे क्या बोला गया है, नॉर्मल और द यूजुअल काइंड, कि नॉर्मल टीचर नहीं होते हैं. इट वॉज अ मैन. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. तो उसको ऐसा लगता है कि एक मैन जो है वो टीचर कैसे हो सकते हैं. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. तो वहाँ पे क्या होता था, जो टीचर होते थे विच वॉज एक्चुअली अ पर्सन, तो क्या करते हैं, उनको काम देते हैं, उनको पढ़ाते हैं. दे टीच देम द सेम लेसन. आफ्टर दैट दे गिव देम होमवर्क and ask them questions about the topic. A man isn't smart enough. अब वो बोल रहे हैं कि जो मैन है isn't smart enough. Sure he is. अब वो क्या एड ऑन कर रहे हैं कि श्योर हो सकता है एक मैन जो है वो भी स्मार्ट हो सकता है. अगर मैकेनिकल टीचर से अगर मैकेनिकल टीचर स्मार्ट है तो एक मैन जो है वो भी स्मार्ट हो सकता है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि जो मेरे फादर हैं वो उतना ही जानते हैं जितना कि मेरी मैकेनिकल टीचर जानती है. मेरे फादर नोज एज मच एज. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेचा. बेचा मीन्स इनफॉर्मल वे में कह सकते हैं बेट यू. और मैं बहुत इस चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि वो जो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कि उतना ही जानते हैं जितना कि वो मेरी मैकेनिकल टीचर इस बारे में जानती है. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब वो क्या बोल रही है, dispute means disagree with. किसी चीज़ को लेकर हम disagree करते हैं, जब उसकी जैसे उसकी जब हमने कोई बात बोल दी लेकिन वो उस चीज़ को सही नहीं समझ रहे हैं, मीन्स उसको disagree कर रहे हैं. So Margie wasn't prepared to disagree with that. She said, I wouldn't want a strange man. तो वो कह रही कि मैं अपने घर में कोई ऐसा strange man नहीं चाहती हूँ जो मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए. Who will come to my house and will teach me. So I don't want that such strange man in my house. तो उसको ऐसा लगता है कि शायद कोई एक से पर्सन, एक मैन होता है जो घर में आकर पढ़ाते हैं. But Tommy screamed with laughter. तो वो कहता है, वो हंसने लग जाता है. You don't know much, Margie. अब वो मार्जी को बोल रहा है कि तुम ज़्यादा नहीं जानती हो स्कूल के बारे में. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. जो टीचर्स हैं वो घरों में नहीं रहते हैं. दे वर हैविंग अ स्पेशल बिल्डिंग्स. सो द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग्स एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. एक स्पेशल सी बिल्डिंग होती है और सारे जो किड्स हैं, सारे जो चिल्ड्रन हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो कहाँ पे जाते हैं, उसी बिल्डिंग में पढ़ने के लिए. And all the kids learn the same thing. अब वो ऐसे बोलते हैं कि सारे जो बच्चे हैं वो एक ही चीज़ पढ़ते हैं एक टाइम पे. Sure, if they were the same age.
अगर वो सेम एज के हैं, इफ द स्टूडेंट आर स्टडिंग इन अ 7th क्लास है, तो इन 7th क्लास मान लो कि 35 स्टूडेंट हैं, तो 35 स्टूडेंट जो हैं सेम टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, सेम टाइम पे सेम टॉपिक 35 स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, अलग अलग इंडिविजुअल जो है वो नहीं पढ़ाया जाता स्कूल्स में. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. देखो ये बोल रहे हैं कि मेरी जो मॉम है, मेरी जो मदर है, वो ये कहती है कि उसको कुछ सेटअप इस तरह से करना पड़ता है ताकि वो हर एक बॉय, हर एक गर्ल को उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही उसको डिफरेंटली पढ़ाए. सो ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, कि हर एक को डिफरेंटली ही पढ़ाया जाता है. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो you no need to read this book. I didn't say I didn't like it. तो मार्जी क्या बोल रही है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं आ रही ये बुक. तो वो बोल रही है she wanted to read about those funny schools. तो बोल रही है कि उसको उस funny schools के बारे में रीड करना है और जानना है. She wants to know more about that school. They weren't even half finished when Margie's mother called. उन्होंने अभी हाफ भी फिनिश नहीं किया था जब मार्जी की मदर ने उसको बुला लिया. Margie, school. Margie looked up. Not yet, mama. तो वो मार्जी की जो मदर है वो उनको बुलाती है, स्कूल के बारे में थोड़ा सा रिमाइंड करवा रही है कि तुम्हें स्कूल जाना है, मीन्स अपनी स्कूल जो है वो अपना अटेंड करो. तो वो क्या बोल रही है कि नॉट येट, अभी नहीं. अपनी मदर को बोल रही है कि अभी नहीं मम्मा. नाउ सेड मिसेस जॉन्स. तो मिसेस जॉन्स क्या बोल रही हैं, नाउ अभी तुम्हें स्कूल अटेंड करना है. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. जैसे उसका टाइम था वैसे टॉमी का टाइम भी सेम था. मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. और वो टॉमी को ये बोलती है कि क्या हम इसके बुक के बारे में थोड़ा सा और रीड कर सकते हैं आफ्टर स्कूल. जैसे हमारा स्कूल खत्म हो जाएगा, क्या हम इस बुक के बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हैं. Maybe, he said nonchalantly. Nonchalantly means not showing much interest or enthusiasm. Carelessly वो बोल रहा है कि maybe, शायद हम पढ़ लेंगे. He walked away, whistling. The dusty old book, it was tucked beneath his arm. Margie went into the school room. जो Margie है वो school room में अब वो चले जाते हैं. It was right next to her bedroom. तो वो जो कहाँ होती है, जो उसका स्कूल रूम है वो कहाँ पे है, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. उसके बेडरूम के जस्ट जो नेक्स्ट वाला रूम है वो होता है उसका स्कूल रूम. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड द वेटिंग फॉर हर. जो मैकेनिकल टीचर होती है वो ऑन होती है, स्क्रीन जो है उसके सामने प्रेजेंट होती है एंड उसकी वेट कर रही होती है कि कब मार्जी आए एंड दे विल स्टार्ट देयर क्लास. It was always on at the same time every day except Saturday and Sundays because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. अब वो क्या बोलते हैं कि वो हर रोज़ सेम टाइम पे आ जाती है, उसकी मैकेनिकल टीचर सेम टाइम पे ऑन हो जाती है एक्सेप्ट ऑन संडे एंड सैटरडे. संडे और सैटरडे वीकेंड्स को छोड़कर बाकी वो सारे दिन अपने बिल्कुल एकदम सही परफेक्ट टाइम पे वो पहुंच जाती है. तो क्योंकि उसकी मदर कहती है कि जो एक लिटिल गर्ल है वो बहुत अच्छे से समझ पाएगी इफ़ शी विल लर्न फॉर अ रेगुलर आवर्स. इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स दे कैन लर्न वेरी वेल, इवन दे कैन डू वेरी वेल. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड. तो जब स्क्रीन होती है वो थोड़ी सी लिट अप होती है, तो स्क्रीन पे क्या लिखा होता है, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. कि आज का जो arithmetic lesson है वो किस पे है, on the addition of proper fraction. Proper fraction की addition पे है आज उनका lesson. And please insert yesterday's homework in the proper slot. कि अपना जो कल का जो homework है एक proper slot में डाल दो. Margie did so with a sigh. Sigh क्या होता है, deep audible breath expressing sadness, tired और relief. एक डीप ऑडिबल ब्रेथ होती है जो हम अपनी टायर्डनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी सैडनेस या फिर रिलीफ को एक्सप्रेस करते हैं, लाइक उफ.
सो शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, मतलब ऐसे वो होता है उसको कि मुझे अपना होमवर्क जो है दोबारा से वहाँ पे हैंड इन करना पड़ेगा. आई नीड टू पुट दैट होमवर्क ऑन द इन द प्रॉपर स्लॉट. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. अब वो किस चीज़ के बारे में सोचे जा रही है? उसी पुराने स्कूल में. She is continuously thinking about that old kind of school which her grandfather was having at when he was a little boy. जब वो छोटे से एक लड़के थे तब उन्होंने जो स्कूल के बारे में उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. तो उसको क्या लगता है कि सारे जो बच्चे होते हैं वो एक जगह पे आते हैं, हमें एक जगह पे हंसते हैं, एक जगह पे मीन्स इंजॉय करते हैं, शाउट करते हैं, लर्न करते हैं, डिस्कस करते हैं. दे सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम. तो आराम जो सभी स्टूडेंट हैं एक ही क्लासरूम में वो इकट्ठे बैठते हैं. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और जब स्कूल ओवर हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल गो टुगेदर टू देयर होम. तो अपने घरों में वो इकट्ठे जाते हैं. दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. एज दे लर्न द सेम थिंग, सो अगर जैसे वो एक चीज़ सीख रहे हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं. दे कैन हेल्प ईच अदर टू लर्न अबाउट दैट टॉपिक. And they can also help each other in a homework also. And the teachers were people. और जो teachers हैं वो क्या होते हैं? People, not a mechanical teacher. Not was operated by a machine only. The mechanical teacher was flashing on the screen. और जो mechanical teacher होती है उस टाइम पे जब वो सोच रही होती है तो वो फ्लैश कर रही होती है स्क्रीन पे. When we added fractions. Fractions क्या लिख रही होती है? 1/2 and 1/4, क्योंकि आज उनकी क्लास होती है जिसमें उन्होंने एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस करना होता है. सो मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. कैसे वो कितना इंजॉय करते होंगे उस टाइम को. ओल्ड डेज में वो कितना, जो पुराने दिन थे, कितना इंजॉय करते होंगे स्कूल को. वेयर दे यूज्ड टू गो टुगेदर, सिट टुगेदर, लाफ टुगेदर, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल वेंट टू देयर होम टुगेदर. She was thinking about the fun they had. और यहाँ पे वो किस चीज़ के बारे में सोच रही थी? उसी फन के बारे में सोच रही थी. The fun they had in that school. अब ये थी हमारी स्टोरी. तो इस स्टोरी में हमने क्या सीखा कि जब हमारे जो स्कूल्स हैं जब वो फ्यूचर में सेट हो जाएंगे तो क्या होगा. फिर मैकेनिकल टीचर्स जो होंगे वो होंगे. आज हमारे पास टीचर्स हैं, बुक्स हैं, दे वर प्रिंटेड ऑन अ पेपर, बट दैट टाइम e-text will be there. You will have a million of books but on a screen only. तो now think about it कि कौन से स्कूल बेटर हैं. आज के स्कूल बेटर हैं जब हम सब जो स्टूडेंट हैं इकट्ठे क्लासरूम में बैठते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे इकट्ठे ही घर जाते हैं. सो एक ये टाइम है, एक वो टाइम होगा फ्यूचर में जब जो है इंडिविजुअली जो है सबको पढ़ाया जाएगा थ्रू मैकेनिकल टीचर के थ्रू. ऑलराइट. So that's all for today. This is the end of our chapter. In the next lecture, we will do all the NCERT questions, and along with that, we will do the poem also. That's all. Have a nice day.